evening, everybody. Thank you so much for coming here. Last time we had met for the trailer launch of Sala Khadu's, and so today we met. Last time, actually, if you remember, Ritika, who's the lead actor in the film, she wasn't there. She was still shooting. So today we've specially met to introduce Ritika to you all. Ritika is playing the lead actress in this film. She actually is a professional boxer. She does karate, she does mixed martial arts, and lots of other things, kickboxing. So you have to be really, I actually never sit next to her, I sit a little far away from her. So when Maddie came to me with this script, and Sudha, who's the director of this film, she's unfortunately still not with us. She's still trying to finish the film in Chennai. She's mixing the film. So they said that we want a professional boxer to play the lead. And I was very, very apprehensive about it. I was worried ki how would a boxer be an actor? Of course, the matches would look very real, but there are many scenes where you have to act too. But Maddie and Sudha were very adamant. They said, let us give it a shot. Because they wanted the fights to look very real. So they went on a nationwide hunt and auditioned many boxers. And finally, one day they sent me an audition of Ritika. And I was very, very pleasantly surprised to see that, because in the film, not only she has to box, she has to speak two languages. This film has been shot in Hindi and Tamil. So she has to speak Hindi and Tamil. She has to act. She has to box. And we needed a young 18-year-old girl. And when I saw that, I was like really pleasantly surprised. And then as and when finally went ahead and when I saw the rushes, I even saw some making, and I realized when Sudha is talking to her, she's got blinkers on, completely bilkul aisa focused mein. Usko, I think everything cut, she disconnects from the world and she's only taking instructions. So when I'll see the film, I'm sure she'll surprise you, but before that we'll introduce you to her. But before that, Maddie should tell her about her experience, about his experiences with Ritika while the shoot. Thank you, Rajuji. Yeah, we wanted somebody who knew how to box because we were trying to make a very realistic film. I had to go to LA to learn how to box and look like a boxer, so I said, yeah, at least get the heroine to also know international level of boxing, in fact, world level of boxing. So Sudha and I had an argument and we finally said, yeah, we'll try and look for boxers first. If we don't get it, then we'll try and look for actresses who can box. पर मेरे को confidence नहीं था क्योंकि अब किसी actress को boxing सिखाओ तब तक तो मैं और भी बूढ़ा हो जाता. तो ऐसे ही लोग कह रहे थे कि आप इसके बाप की उम्र के हो. हुआ यूँ कि we needed a girl, जैसे राजू जी कह रहे थे, जो 17 साल की दिखे, जो हीरोइन की तरह दिखे, जिसको एक्टिंग में इंटरेस्ट हो, जो बॉक्सिंग जाने, जो तमिल और हिंदी दोनों में डायलॉग बोले, जिसके माँ बाप हमें अलाउ करें कि एक साल आप पूरा हम पे निछावर कर दो, हम पे यकीन करें, और ये खुद एक्टिंग करना चाहे. तो ये तो इम्पॉसिबल टास्क था. बट जब मेरे दोस्त राज कुंद्रा ने कहा कि हमारे यहाँ एसएफएल में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, आप आके मिल लो एक बार, तो मैं गया वहाँ पे. तो मैं रितिका से पहली बार मिला और मैं बिल्कुल बौखला गया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट करती है. मैंने फौरन अपने डायरेक्टर को बोला कि आप आ जाओ सुधा, कम एंड डू द स्क्रीन टेस्ट विथ हर, सी इफ यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट टू यू द एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल, रितिका. और इस फिल्म में एक डायलॉग है जहाँ पे वो मुझसे कहती है कि आई लव यू, और मैं कहता हूँ बकवास मत कर, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ. तो ये डायलॉग बोलते समय मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं इनके बाप के उम्र का नहीं हूँ. और फिर मैं जाके इनके पिताजी से मिला जिनसे अभी आप मिलने वाले हो, और मैं बिल्कुल सही था, मैं इसके बाप की उम्र का नहीं हूँ, वो मेरे से 2 साल छोटे हैं. तो ऐसे चैलेंजेस के साथ मैंने ये फिल्म की है और मुझे बड़ा गर्व है कि आज आपके सामने मैं रितिका सिंह को पेश करूं. जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट टाइम कहा था साला खड़ूस से हमारा मतलब ये है कि साला खड़ूस एक मेंटर है जो इस फिल्म में इनके कोच है, बॉक्सिंग के कोच है रितिका के. तो मेंटर वो होता है जो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, मगर आपको इतना परेशान भी करता है, आपको इतना पुश भी करता है कि एज अ स्टूडेंट आप कभी ना कभी जरूर कहते हो कि यार खड़ूस है यार, कब जाएगा मेरी जिंदगी से. तो हम सबके लाइफ में, हमने लास्ट टाइम बताया था, कोई ना कोई साला खड़ूस रहा है.
तो आज हमने रितिका से पूछा कि आपके लाइफ में कौन आपका साला खड़ूस है, तो रितिका ने कहा मेरे लाइफ में साला खड़ूस है मेरे पिताजी. तो वी ऑल्सो गॉट हर, एंड सो दैट यू बिलीव अस दैट शी इज अ रियल बॉक्सर, वी विल इंट्रोड्यूस हर with a little match where she will be sparring with her father. So it's here. Come, Ritika, and sir, please. As soon as you're ready, Ritika. She's getting ready. You don't disturb her when she's getting ready. Very dangerous woman. ये देखिए क्या लपेट रही है कुछ हाथ में ये. Why don't you tell her that episode यार when the band broke? So while she's getting ready, I have to tell you कि ये बॉक्सिंग वाली फिल्म थी, मुझे लगा कि मैं हीरो हूँ यार. अब जब आप सेट पे जाते हो तो यू ऑलवेज फील, यू वांट टू फील लाइक अ हीरो, यू वांट टू फील तगड़ा. तो एक शॉट था जहाँ पे रितिका को मुझे मारना था, नहीं रितिका मुझे मारने वाली थी. तो मैंने कहा रितिका मारो, डोंट वरी, मैं भी ऐसे बॉडी बना के लेके आया. तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बकायदा जो रियलिस्टिक लगना चाहिए, रियलिस्टिक है, डोंट वरी, मेक कॉन्टैक्ट. शी सेड मैडी सर नहीं होगा, वो सोच लीजिए. मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल मारो मारो. और उसने जो दिया, घुमा के दिया है मेरे थोपड़े पे, मेरा एक दांत दूसरी दांत से छोटा हो गया था फॉर अबाउट 6 वीक्स. तो आप अगर ट्रेलर देखोगे तो उसमें एक सीन है जहाँ पे वो कहते हैं कि मास्टर आपको क्या चाहिए, मैं कहता हूँ नॉकआउट. उस वक्त आप देखेंगे मेरा दांत एक्चुअली छोटा है. बहुत पिटा हूँ मैं इस लड़की से. मैं ही नहीं, वहाँ के जो फाइटर्स भी आए थे, वी वर शूटिंग इन ऑन द बीच, और एक सीन है कि ये 2-4 लड़कों को मार के मेरे पास आती है. तो मैं आया वहाँ पे और बीच पे, और वहाँ पे वो फाइटर्स मिले, 3 साल बाद मुझसे मिल रहे हैं. तो कह रहे मास्टर मैडी सर कैसे हो आप, ठीक ठाक. मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कहा आप तमिल फिल्म नहीं करते हो, ये वो कंप्लेन करते. मैंने कहा आप लोग रिहर्सल कर लिया आप लोगों ने? उन्होंने कहा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा फाइट है. मैंने कहा पर रिहर्सल तो कर लिया ना आप लोगों ने? उन्होंने कहा हाँ नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. तो मैंने मास्टर जी से कहा सर एक रिहर्सल देख लेते हैं, मुझे भी जाके फाइट करना है. तो फाइट में रितिका को उन्होंने उठाकर पकड़ रखा है. शी हैज टू जंप डाउन, एक को लात मारना है, एक को पंच मारना है, और फिर एक को गिरा के मैं जाके उसको रोकता हूँ. तो मुझे भी मारने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि मैं भी गुंडा हूँ. एंड देन शी रियलाइजेस मास्टर है, और उस गुस्से को मैं ट्रेनिंग में बदल देता हूँ. जब उससे कहा गया एक्शन, तो ये साउथ के जो फाइटर हैं उनको पकड़ के रखे थे, बुआ 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 कर रहे थे. इसने उतर के जो जमाया उन लोगों को, हमने तो उसको बता दी कि रियलिस्टिक एक्टिंग करो, रियलिस्टिक एक्टिंग, सब में रियलिस्टिक, लेकिन हमने उसको बताना भूल गया. हम भूल गए कि फाइटिंग रियलिस्टिक नहीं होता, असली मार नहीं मारते. उसने जो जमा के एट द स्टमक शी इज गिवन हिम अ किक, और वो बेचारा वहां भागे से बहुत मारती है. अभी हीरोइन ऐसा कर रहे वो. तो ये लड़की है भाई, शी इज रेडी. सर जी आप रेडी हैं? रिंग इज ऑल योर्स.
That was fantastic, I should say. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो बॉक्सिंग राउंड्स होते हैं वो सिर्फ 2 मिनट के होते हैं और तब तक हालत खराब हो चुकी है सबकी, बिकॉज इट्स अ रियली रियली टफ स्पोर्ट. मैं समझा नहीं था, मुझे लगता था कि आप जब टीवी पे देखते हो बॉक्सिंग को तो आपको लगता है कि यार इतना आसान काम है, लेकिन 2 बार लगे और 2 मिनट के लिए अगर आपको रिंग में रहना पड़े तो उसकी असली अहमियत समझ में आएगी. सर, हाउ डिड यू, व्हाट डू यू थिंक Ritika did? And Well, today because it's an event and I think it's a press meet, so she's bit conscious. But I think if given the opportunity, if it would have been a real ring, I think the performance would have been different. But still, she's doing much better today. okay, good. मैंने इन लोगों को I have a personal feeling कि I think she's being very respectful towards the Salakadus, which is you. देखिए वो सरे ला रही है. मैं father को, isn't that true, Ritika? What do you say? I thought I have seen you fight and I know you can smash somebody. What do you think? You were going slow? I was being very respectful because of course he's my Salakadus and I cannot hit him like this. सबके सामने तो बिल्कुल नहीं. तो ऐसे फिर लोगों को तो पता ही नहीं लगेगा ना कि तुम मक्का मार सकते हो किसी और को. Anybody else can box? Maddie? आप आ रहे हो? Anybody else wants to fight with? Anybody else you can smash? Anybody else who's a boxer here? ये मजाक नहीं है. I ये have a मजाक boxer with me. हाँ. Who's my real brother, Rohan Singh. Come on. Oh, ये पूरी फैमिली बॉक्सर्स की है. So can we watch you fight with your brother? Yeah. Okay, fantastic. Let's watch a fight with your brother. All right. So कैसा लगा आप लोग को? आप समझ में आ रहा मैं क्यों दूर बैठता हूँ रितिका से 2 चेयर्स. अजू थोड़ा डिस्टेंस रखा है चेयर. अच्छा रहने दीजिए, है ना. नहीं लड़ वो रही है, पसीना मुझे आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है. What had happened to you when that elastic band I remember had broken? ट्रेनिंग के दौरान इस फिल्म में बहुत सारी ट्रेनिंग वीडियोस हैं जिसमें हम कहते हैं उसे टेरा बैंड. एक बड़ा सा थिक रबर बैंड होता है जो 1 इंच का होता है कम से कम, और उसको मैं पकड़ता हूँ और वो रबर बैंड रितिका की कमर में बांधा जाता है एंड शी इज रनिंग अवे फ्रॉम मी और मैं उनको रोकता हूँ इससे. तो वो रबर बैंड स्ट्रेच हो गया. उसको तोड़ना आसान नहीं है, पर ये लड़की जो है इतनी मतलब उसमें स्ट्रेंथ है कि वो भागी पूरे बास्केटबॉल के क्रॉस, कोर्ट के क्रॉस, और वो रबर बैंड टूट कर सीधे आके मेरे हाथ में लगा. खून खराबा हो गया बिल्कुल, और हम मतलब जो है शूटिंग नहीं कर पाए. तो रितिका के साथ चांसेस लेना बहुत डेंजरस है, मुझे वो समझ में आ गया. उसके बाद बहुत सारे सिक्योरिटी के साथ ही हम शूट करते थे.
So we can start. Ritika will join us. Yeah. Anybody's got questions? any questions? My question is to Hirani sir. So you know the kind of films you have made are usually like very peaceful and messaging, and this film seems unlike any other films which you have been associated No, with. actually, I've always made films which I would say feel good films. And once you see this film, I think all sports films are very inspiring films. It's usually a story of an underdog who finally battles all odds and comes out a winner. So, ये बहुत inspiring film है actually. How these two against all odds fight and what happens. आप देखेंगे तो हाँ मेरे फिल्म में मुक्के नहीं चले हैं शायद, पर पहली बार मुक्के चलेंगे, पर आपको खुशी उतनी मिलेगी. हाय रितिका, वेलकम टू बी टाउन. मेरा सवाल है, बचपन में बॉलीवुड का क्रेज था, हिंदी फिल्में देखती थी आप, जरा उसके बारे में बताएं. बचपन में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का क्रेज था, वो था मार्शल आर्ट्स, बिकॉज मेरे डैड मेरे कोच हैं. सिंस आई वाज 3 years old आई स्टार्टेड डूइंग कराटे. एंड बॉलीवुड का मुझे कभी भी ऐसा कोई क्रेज नहीं था. मैं इतना मूवीज़ भी बहुत कम देखती हूँ. कभी सोचा भी नहीं था कि बॉलीवुड में कोई फिल्म करने का चांस मिलेगा. तो जब मिला तो मैंने ऑब्वियसली हाँ बोला, बिकॉज द स्टोरी इज़ ग्रेट, द कैरेक्टर इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड. Nadi sir, Raju sir, everybody is fantastic. So I couldn't say no, and I'm here today. Thank you. एंड पहली चॉइस अब क्या रहेगी साला खड़ूस के बाद, फिल्में या गेम? I would love to do films because मेरा ये experience बहुत अच्छा था. एक बहुत different experience था मेरे life में जो मैं करती हूँ उससे. But I will never ever stop training. I might fight if I train properly for it. जैसे what you see now, I was not in my proper form because I have a knee injury, so I'm not able to train so much. But if I have to fight, I'll train very hard and do it. But I'd love to do films. I love it. I also have a knee injury. हाँ जी. मेरा सवाल आपसे है कि हमने देखा कि जो रक्षाबंधन के लिए गाना गाया जाता है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, वो तो निभा दिया रितिका ने, लेकिन आपको कितने लात घुसे खाने पड़े हैं रितिका से ड्यूरिंग द शूटिंग? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं अपनी हीरोगिरी दिखाने की कोशिश कर रहा था पहले 2 दिन में. हाँ. और जो 2 पड़ी मेरा एक दांत छोटा हो गया, उसके बाद से जो है हम बड़े क्योंकि फिल्म में मैं प्रोड्यूसर भी हूँ यार, थोड़ा डिले होता तो मुझे धक्का लगता, इसलिए मैंने बड़े प्यार से फिर बाद में जो सारी शूटिंग मैंने बड़े प्यार से की. ज़्यादा पिटा नहीं मैं से, मौका नहीं दिया उनको मारने का. जी. तो वाकई ये कहना गलत होगा कि रितिका जो है आपकी बेटी की उम्र में है? नहीं, थोड़ी कम उम्र में उससे. जैसे कि मैंने कहा, उनके पिताजी मेरे से 2 साल छोटे हैं. सर, अक्सर ऐसा होता है कि कोई बायोपिक बनती है या कोई इस तरह की फिल्में बनती हैं तो ग्लैमरस हीरोइन को कास्ट किया जाता है जो पॉपुलर हो. जैसे मैरी कॉम बनी थी तो प्रियंका चोपड़ा को कास्ट किया गया. रियल लाइफ लोगों को कास्ट नहीं किया जाता. तो आपको क्या प्रॉम्प्ट किया कि आप रितिका को कास्ट करें? वो क्या बात थी रितिका में आपको लगा? नहीं, जैसा मैंने अभी बताया कि मैं तो बहुत रिलक्टेंट था. मैं यही चाहता था कि कोई एक्टर कास्ट किया जाए, क्योंकि सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं है, काफ़ी सीन्स हैं, बहुत अच्छे सीन्स हैं जो डिफिकल्ट सीन्स हैं. मगर सुधा और मैडी वे वेरी श्योर, दे सेड कि इस फिल्म की जो बॉक्सिंग है, क्योंकि काफ़ी सारे मैचेस हैं इसमें, वो रियल लगने चाहिए. और उन्होंने कहा उल्टा तरीका अपना के देखते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉक्सर एक्टिंग कर पाए. एंड दैट्स व्हाई दे वेंट ऑन दिस सर्च. अगर आपको 3 इडियट्स याद हो तो उसमें भी हमने ऐसे एक चतुर का रोल था जिसमें मुझे कैरेक्टर चाहिए था जो हिंदी नहीं जानता है. तो हमने तकरीबन पता नहीं 500-600 लोगों को उस टाइम ऑडिशन किया था, हिंदी एक्टर्स, और उनसे कहा गया था कि आप ऐसे ऑडिशन करिए कि जैसे आप हिंदी नहीं जानते हैं. तो जितने भी ऑडिशन वो सारे फेक लग रहे थे. फाइनली हम लोगों ने ट्राई किया कि हम यूएसए में ऑडिशन करते हैं. तो वहाँ इंडियन बॉर्न्स हैं जो वहाँ पैदा हुए हैं और वो हिंदी नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं. तो उन्हीं वैद्या जिनको हमने कास्ट किया वो एक्चुअली हिंदी बिल्कुल नहीं जानते थे. जब हम यहाँ लेके आए, वो ऐसा पढ़ लेते थे, याद कर लेते थे और बोलते थे. उनका जब हमने ऑडिशन किया था तो उनको हमने कुछ डायलॉग्स दिए थे, जिसमें एक डायलॉग था कि मुझे वो चाय का कप दो. तो उनको 2 समझ में नहीं आता था, उनको 2 लगाए ये है, तो वो ऐसे कहने लगे मुझे चाय का कप दो. तो उनका हाथ का और मुंह का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था शब्दों का और इसका. मगर वी टुक दैट चांस बिकॉज ही वॉज रियल. तो ऐसा लग रहा था वाकई हिंदी नहीं जानते और जिस ढंग से आपने देखा उन्होंने किया. तो सिमिलरली आई थिंक यहाँ नीड थी कि बॉक्सिंग मैचेस शुड लुक रियल, दे आर नॉट फेक. एंड सरप्राइजिंगली आप देखेंगे आई थिंक शी इज अ वेरी फोकस्ड गर्ल, सो शी इज परफॉर्म्ड वेरी वेल. माधवन सर, आपको किसी तरह के अप्रीहेंशन थे रितिका के बारे में और कितने सेटिस्फाइड हैं उनके परफॉर्मेंस से?
मुझे कोई डाउट था ही नहीं। मैं हमेशा श्योर था कि अगर इस फिल्म को रियल दिखना है, अगर मैं जिस तरीके से हम लोग इस फिल्म को ड्रीम कर रहे थे, अगर वो दिखना है तो शी हैज़ टू बी अ वर्ल्ड क्लास बॉक्सर। और जो उम्मीद हम लेके आए थे कि हमको अगर ऐसी लड़की मिलेगी तो हमारी फिल्म जो है वही बनेगी जो हमने सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा मुझे रितिका ने दिया। आज तक मैं आपको बताता हूँ, कोई भी शॉट चेन्नई में रीटेक नहीं हुआ गया because of Ritika's performance or her dialogue delivery or the way she spoke Tamil or the way she spoke Hindi। कोई एक बार भी इस लड़की की वजह से हमको रीटेक नहीं लेना पड़ा, ये बात सच है। मैडी जी जी। यहाँ इस तरफ। मैडी जी नमस्कार। आपसे, राजू जी आपसे और सिद्धार्थ जी आपसे भी। सिद्धार्थ जी जी हाँ। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि खेल किसी भी फॉर्म में हो उनकी गवर्नमेंट इसको प्रमोट करेगी, तो क्या खेल मंत्रालय की तरफ से आप लोगों को कोई सपोर्ट मिला? नहीं, हम गए नहीं खेल मंत्रालय के पास कोई सपोर्ट लेने के लिए। हमने फिल्म बनाई है और अब हम चाहते हैं कि अब फिल्म बन गई है तो हम काफी लोगों को दिखाना चाहते हैं जो भी स्पोर्ट्स से कनेक्टेड लोग हैं, और वो देख के अगर इसके बारे में बात करेंगे तो हमें खुशी होगी। जी राजू जी, आपकी जो फिल्में होती हैं, मैं ही हाँ। राजू जी, आपकी जो फिल्में होती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज देती हैं, तो ये जो साला खड़ूस है इसमें क्या मैसेज है? अब आप फिल्म देखिए। फिर भी कुछ नहीं, हर बार ये नहीं है कि कोई एक सोशल मैसेज होना चाहिए, पर आप फिल्म देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको टेक अवे मिलेगा कि हाउ यू फाइट अगेंस्ट ऑड्स, परसिवरेंस, और if you decide, if you focus, you can really achieve what you want. That's the takeaway of the film. जैसा कि ट्रेलर में कहा गया है कि अगर उसमें से पॉलिटिक्स निकाल दी जाए तो क्या ये उस पर भी कुछ प्रहार करने वाली फिल्म है? आप थोड़ा छोड़ दीजिए फिल्म को देखने के बस 29th को भी रिलीज हो रही है, 29th को Hi, हम आपको उसके पहले दिखाएंगे। सेट पे खड़ूस कौन था? सेट पे खड़ूस एक्चुअली दो भी नहीं, एक ही थी, सुधा मैम जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं। वो हम सब उनको हिटलर बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत मतलब शी इज अ टास्क मास्टर, एंड जब तक उनको वो चीज़ नहीं मिलती है जो उनको चाहिए, शी विल नॉट स्टॉप, शी विल मेक यू गो एंड शी विल मेक यू गिव योर 500% फॉर अ शॉट। दैट्स हाउ शी इज। नहीं, it's a film about both of them. It's a coach and a very reluctant prodigy है, जैसा मैं कहूँगा, उन दोनों की कहानी है ये। इंडस्ट्री में आ चुकी हैं अभी, तो एक और कंपटीशन होगा जहां पर कई सारी अदाकाराएं होंगी आपके सामने, उसको कैसे आप क्या स्ट्रेटजी उसके पीछे है, या डैड से कभी बात की आपने इसके बारे में? सिंपल है, 2 लाते 2 घुसे। नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ मैं ऐसे काम नहीं करती रिंग के बाहर मुझे घर पे अलाउड नहीं है किसी को ऐसे रिंग के बाहर मारना। मेरी आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई है रिंग के बाहर, सिर्फ रिंग के अंदर। वो डैड ने सिखाया है। एंड जहाँ तक कंपटीशन की बात है, मैं आई थिंक मेरा मार्शल आर्ट्स की बैकग्राउंड की वजह से मैं कभी लाइफ में इनसिक्योर या जेलस फील नहीं करती। मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ, किसी के अंदर टैलेंट है, किसी के अंदर वो बात है, तो आई से कि ओके वाओ शी डिजर्व्स इट, जहाँ पे वो आज हैं वो डिजर्व करती हैं, एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी वहाँ पे पहुँचूँ। तो अभी तक तो मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है, बट आई एम श्योर आई टेक इट द सेम वे जैसे मैं मार्शल आर्ट्स में लेती हूँ। अच्छा आंसर दिया तो नहीं यार, क्या बात। एक सवाल आपके पिताजी से भी जानना चाहेंगे सर, अगर आप बोलना चाहें कि इंडस्ट्री में जब खेल से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान आता है तो उसके पिता, आपको क्या रिएक्शन मिल रहे हैं लोगों से ट्रेलर देखने के बाद, प्रोमो देखने के बाद? रितिका का मतलब ट्रेलर देखने के बाद में, आई मीन रितिका को काफ़ी लोगों ने वैसे SFL या अलग टीवी चैनल्स में देखा। देयर वर कपल ऑफ टीवी रियलिटी शो व्हिच हैज कम, व्हिच वाज Super Fight League and all that. So people have seen her on the television, but seeing her on a bigger screen and going forward for the acting as a career, so many people are asking me what is next. So my problem is I am happy, at the same time I am sad also, because if she chose to go into the film industry, then I am going to lose a good student. And if I get a good student, then she is going to lose a good career. So I think between both of us, there is a good amount of chemistry. We discussed every day and we say, what next? What's the future? And then we say, let's come to a conclusion where there is a win-win situation for both. You continue doing your training, and at the same time, if there is a good break you are getting it, please go ahead and do that. So from my side, I think seeing her acting, especially in this movie, whatever I have seen, like you guys have seen, I have seen the small trailer. So after looking at the trailer, I feel that she has a potential as a sports person, but she also has a potential as a good actress. So my all the best wishes to her. आपको मुक्का खाने से और मुक्का मारने से डर नहीं लगता है?
फिल्म में कोई एक ऐसी सीक्वेंस थी कि आपको लगा कि नहीं यार थोड़ा डिफिकल्ट है, डर लग रहा है? डर तो कभी ऐसे लगा नहीं, लेकिन मुझे इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ फाइटर आई थिंक मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चीज़ थी फाइट सीन्स करना, क्योंकि जैसे आपको मारी सर ने बताया, मैं भूल रही थी कि रियल लाइफ फाइटिंग और रियल लाइफ फाइटिंग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैं आई यूज टू गो फुल ऑन, और मेरी जो ओपोनेंट्स थी वो जब भी मुझे बहुत मारती थी तो मेरा हेडेक वगैरह बहुत ज़्यादा होता था। जैसे आपने देखा जो हम लोग हिट्स लेते हैं वो बहुत जोर से आपकी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक पूरी हिल जाती है, तो उसके बाद में योर हेड स्टार्ट्स एकिंग, थोड़ा सा इट स्टार्ट्स एकिंग, आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरे साथ में वही हुआ कि मैं भूल रही थी कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो माइडी से यूज्ड टू कम टू मी एंड से, रितिका रिलैक्स, वी नो यू आर अ फाइटर, वी डोंट नीड टू सी दैट नाउ, जस्ट से व्हाट वी डू, जस्ट डू व्हाट वी आर सेइंग एंड जस्ट फॉलो, थोड़ा स्लो करो, थोड़ा इजी। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ था। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जब आप दो फाइटर्स के साथ काम करते हो स्क्रीन में, हमने कई बार देखा है कि मैं भी एज ए हीरो अगर जब मैं पिटता हूँ तो मुझे बड़ा खराब लगता है कि यार ये दूसरा हीरो कैसा मेरे को पीट सकता है, ये ब्रिंग के कैमरा बंद करके थका दिखाता हूँ मैं उसको। पर चक्कर यह था कि जब आप फाइटर हो और इनके साथ जो क्लाइमैक्स में फाइट कर रही है वो एक्चुअली वर्ल्ड चैंपियन है, उनको हमने इंग्लैंड से लेके आए थे इनके साथ फाइट करने के लिए, और दोनों लड़कियां हैं। शाम को जब बैठ के हम खाना खाते थे या पार्टी करते थे, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आई लव यू करते हैं, एक दूसरे से प्यार गले से मिलते हैं। पर जहां रिंग में इनसे कहा गया कि आप पिटने वाली हैं और आप पीटने वाली हैं, वो बड़े प्यार से पीटती थी और ये बेचारी खा लेती थी। पर जब एंड में हम उनसे कहते कि भाई आपको अभी थोड़ा पिटना है, वो हालांकि दिमागी तौर पर वो हाँ कहते थे, लेकिन बॉडी के तौर पर पिटने के लिए लायक रेडी नहीं थे वो। मतलब ये मारे तो ब्लॉक कर रहे, मतलब लग ही नहीं रहा कि वो पिटेंगी। तो इट यूज्ड टू बी वेरी टफ, कट करके हम चिल्ला के नाम अंदर जाके रिंग में उनको पकड़ के खींच के ले आते थे कि भाई हो गया शॉट खत्म, फिर वो प्यार से वापस एक दूसरे से बात करते थे। इट वाज वेरी टफ, इट वाज रियली टफ। I'd like to add something here. Just आपने जो बोला उसको कंटिन्यू करना चाहूंगी। So there are shots in the film where I'm supposed to keep my hands down. In a fight, you see मेरा हाथ हमेशा ऊपर होता है, I'm guarding my face. But I'm supposed to keep my hands down. I can see the punches coming and I have to take them. ऐसे खड़े रह के मुझे सिर्फ मार खानी है। तो ईगो तो हर इंसान में होता है। After a point of time you lose it. ऐसा लगता है कि नहीं मेरा मौका कब आएगा, मैं कब अटैक करने का चांस मिलेगा, because इतनी ज्यादा मार हाथ नीचे रख के when you can see the punches coming, you still can't do anything about it because you're supposed to do it that way. इसीलिए कट के बाद मार देती थी। और प्रॉब्लम ये होती थी कि सेट्स पे शोर बहुत होता था, डायरेक्टर की आवाज, फिर पूरे क्राउड की आवाज, तो मैम बोलती थी कट, हम सुन ही नहीं पाते थे, हम लोग फिर भी लगे रहते थे फाइट के अंदर। तो हमने कट के बाद भी बहुत मार खाई। ये तो बहाना है, सच बता, चल रहा है। रितिका, तमिल गाली कितनी सिखाई मैडी सर ने? मैडी सर ने मुझे कोई गाली नहीं सिखाई। सच बोले। एक्चुअली तमिल में जो मैंने लैंग्वेज बोली है वो थोड़ी सी स्लैंग है, पॉलिश तमिल नहीं बोली है मैंने, बहुत ही जैसे स्लैंग वर्ड्स होते हैं मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं। तो उसमें गालियाँ मैंने सबसे फर्स्ट थिंग जो मैंने किया, मैंने गाली सीखी, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। एंड देन यू कैन ट्राई, ऐसे लोगों को बोलती, और मैं एकदम इनोसेंटली बोलती थी ये वो, एंड देन लोग बोलते थे हाँ क्या बोला, एंड आई वाज लाइक कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बोला बोलने के लिए। तो एक्चुअली वो बहुत मजा आता था मुझे गाली ट्राई करने में। जो साला खड़ूस के लिए तो आपको एक्ट्रेस मिल गई बहुत मेहनत के बाद, लेकिन अगर हम दत्त बायोपिक की बात करें तो ये आपकी खोज कहाँ तक पहुंची है? नहीं, बस मैं वेट कर रहा हूँ, ये जैसी 29th को ये फिल्म रिलीज हो जाएगी उसके बाद देन विल जंप इनटू दैट फिल्म। अभी उस पर कुछ ज्यादा काम हुआ नहीं है, ओनली द स्क्रिप्ट इज कंप्लीट, वी हैव गॉट रणबीर, दैट मच इज डन, नथिंग एल्स हैज हैपेंड ऑन द फिल्म। Sir, Raju sir, here. So straight. So continuing the same question, like we've been hearing that Sanjay Dutt would be coming out of jail next month. Did you had any sort of conversation with Manyata, and what sort of developments have happened in terms of Munna Bhai 3 and Sanjay Dutt biopic? When does both the movies go on floors? नहीं, जैसा मैंने अभी बताया, I have not been in touch with him for a long time because we've been finishing this film and इसके भी promotions चल रहे हैं। तो जैसा आपने सुना है मैंने भी सुना है 25th और end of Feb he is coming out, so I'm waiting for him to come out to then take it ahead. प्रणव धनवानी ने 1000 रन बनाए, आप लोग बैचमेट्स हैं, ऐसी खबर है, तो जरा उसके बारे में बताएं, क्योंकि वो भी सुपरस्टार हो चुके हैं, इधर आप सुपरस्टार हो रही हैं। थैंक यू। वो एक्चुअली मेरे स्कूल से हैं, लेकिन मेरे जूनियर हैं, तो मैं कभी उनसे ऐसे मिली नहीं हूँ फेस टू फेस, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कल्याण में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, मुझे लगा मेरी एक फैमिली, हम लोग अकेले हम लोग पहुंच जाएंगे। बट आई एम सो हैप्पी कि उन्हें भी चांस मिला, एंड ही इज सो फेमस नाउ, ही इज अ सुपरस्टार। हमारे स्कूल में भी सब लोग की बहुत धूम मची हुई है, एंड दे आर ऑल वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड सो एम आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई हैव टू कांग्रेचुलेट प्रणव धनवड़े फॉर हिज अचीवमेंट। रितिका, यहाँ आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट क्या रहा, बॉक्सिंग करना या एक्टिंग करना? मेरे लिए एक्टिंग करना, मुझे मैम ने जो बोला मैंने सिर्फ वो किया। डायरेक्टर मैम ने मुझे बोला रितिका डू इट दिस वे, मैंने वो सेम चीज़ फॉलो की। मेरे लिए फिल्म में भी बहुत डिफिकल्ट था बॉक्सिंग करना, जैसे मैंने बताया कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे कब जाके अपने आप को कंट्रोल करना है,
कब जाके अपने आप को छोड़ देना है, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया एक फाइटर का ईगो होता है, हर इंसान में ईगो होता है, वो थोड़ा आड़े आता था मेरे काम के, बट मैंने धीरे धीरे ट्राई किया एंड आई होप यू लाइक द परफॉर्मेंस. और आगे एक्शन फिल्में करेंगे या रोमांटिक फिल्में? आई लाइक टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स. अभी एक्शन फिल्म में वो और मेरी हिम्मत नहीं है अभी और मैंने बहुत मार खाई है, बहुत मार दी है, अभी कुछ नया ट्राई कर सकती हूँ तो मजा आएगा. Ritika, any real life boxer or fighter who has inspired you? Ronda Rousey, Gina Carano, these two female fighters who are MMA fighters, and Ronda Rousey is a superstar now. She's doing movies and everything. If you see her fights on YouTube, if you see her training, she's so focused and she's so dedicated. I respect her for that, and I just want to be like her someday. Not as a fighter maybe, but as a person in life. I want to be like her. Any wish list of actors you would like to collaborate with in future now that you're interested in acting? I'd like to do it with Maddie sir again. Okay, one more question. Since you're a boxer and since you're very intimidating, do guys really approach you out for a date? No, unfortunately no. एक तो सबको पता है मेरे डैड बॉक्सर है and he looks so young and he looks very, he looks like my brother. So when he comes to college and girls used to be like, is he your brother? I used to say, no, he's my dad. You keep your eyes away from him. तो ऐसा होता था and सर सॉरी सर, आपका तो कोई चांस ही नहीं रहा. रितिका, ये क्वेश्चन That has not been very helpful for you. अपने रियल जिंदगी में किसको पीटा है क्या? नहीं, मैं किसी को भी नहीं पीटा. अरे स्कूल में शायद एक दो बार. मेरा जो भाई है मैं उसको लेके बहुत ज्यादा पॉसेसिव हूँ, हम लोग लड़ाई वड़ाई करते हैं, बट ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. तो आई थिंक स्कूल में किसी ने मैं रिसेस में नीचे ऐसे ही घूम रही थी स्कूल में कैंटीन के आसपास, एंड आई सॉ माई ब्रदर क्राइंग. मोटा सा कोई कोने में बैठ के ऐसे रो रहा है. मैं बोला क्या हो गया? तो बोलता है किसी ने तो पत्थर मार दिया. एंड मैं वहां पे जो पूरे स्कूल में भागी हूँ लड़कियों को ढूंढने के लिए, मुझे पता भी नहीं था वो कौन है और मुझे किसी पे शक था और मैंने उसको थोड़ा सा मारा था, बट फिर छोड़ दिया क्योंकि रोहन ने बोला ऋतु पापा चिल्लाएंगे, ऐसे मत कर प्लीज, छोड़ दे उसको, हम लोग सर को लाके नाम बोलते हैं. तो ऐसी छोटी छोटी हरकतें हुई है बस. अच्छा, तो तुम लोग राखी दोनों एक दूसरे को बांधते होंगे फिर? नहीं, मैं बांधती हूँ उसको. अच्छा, व्हाट मेड यू टू गो इन दिस बॉक्सिंग एज स्पोर्ट्स? आपने क्यों चुना? जब से मैंने आई थिंक बचपन में जब से मैंने आंखें खोली हैं, आई यूज्ड टू सी माय डैड डूइंग पुशअप्स इन द हाउस, किक्स पंचेस वगैरह करते हुए. जब से मैं 3 साल की थी मैं क्या ऐसे कराटे वराटे करती थी. तो पापा ने धीरे धीरे मुझे क्लास पे जाना स्टार्ट किया. बट लाइक वे टॉकिंग टुडे, हम लोग जो बोल रहे साला खड़ूस, वो बहुत ज्यादा खड़ूस थे. मतलब मैं छोटी थी एंड ही वाज लाइक 7 बज गए, कहाँ पे क्लास में है, अब तक ये हो गया वो हो गया. ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद मी. मैं बोलती थी पापा सोने भी नहीं देते, सुबह उठा देते हैं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी. लेकिन धीरे धीरे से मैं बड़ी हुई, मुझे समझ में आया कि जो वो कर रहे हो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूं, वो डाल रहे हैं मेरे अंदर वो डिसिप्लिन की वैल्यूज. तो फिर मैंने गेम को बहुत सीरियसली लिया एंड देन प्रोफेशनली मैंने फाइटिंग शुरू कर दी. अच्छा, आपके डैड को ऐसे लगा ना कि ये बॉक्सिंग में जब आप फाइट कर रहे हो तो डिसफिगर हो जाएगा और यू आर सो ब्यूटीफुल, और ऐसा कुछ लगा नहीं? नहीं, मेरे पापा तो आपने देखा कैसे मारते हैं मुझे, तो उनका कोई टेंशन है ही नहीं उस चीज को लेके. मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी को टेंशन होती है, बाकी किसी को टेंशन नहीं होती. वो सब आगे देखते हैं मेरे को मार खाते हुए. शूटिंग के दौरान मैंने सख्त मनाही कर दी कि पाप के साथ नहीं प्रैक्टिस करना. ही वांटेड द कंटिन्यूटी टू बी करेक्ट. एक्टिंग में इंटरेस्ट बचपन से था? एक्टिंग में मुझे इंटरेस्ट ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगी, क्योंकि एक्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग. मैंने देखा है टीवी पे कितनी मेहनत लगती है और जैसे हम लोग देखते हैं इतना इजी होता नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. लोगों को लगता है कि चलो जाके बैठेंगे, मेकअप वेकअप होगा एंड जाके शॉट देंगे हो जाएगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक जो फाइटिंग है उससे भी ये एक अलग ही लेवल पे एक्टिंग जो चीज़ है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था, बट अब ये मौका मिल गया तो मैंने कर लिया. इस फिल्म में एक्टिंग करने में आपने एंजॉय किया? अच्छा, कुछ ट्रेनिंग ली, वर्कशॉप्स वगैरह क्या क्या लिया आपने? आई थिंक मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए आई वेंट टू कलरानी मैम, हु हेल्प मी थोड़ा ओपन अप करने के लिए, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है फिल्म में शी इज बिंदास. तो अब जैसे फर्स्ट टाइम मैं कैमरा के सामने आई हूँ, आई बी अ लिटिल कॉन्शियस. तो उन्होंने मेरा वो जो एक होता है ना जो हमारे अंदर जो होती है कि मैं ऐसे कैसे बिहेव करूँ, मैं ऐसे कैसे करूँ, उन्होंने मुझे पूरा ओपन कर दिया, कंफर्टेबल कर दिया अपने स्किन में. एंड बस उन्होंने बोला जाके जो करना है मैम जो बोले कि वो करना. आपने मेरे कॉम देखी होगी फिल्म? हाँ. आपको अपना रोल ज्यादा चैलेंजिंग लगता है या प्रियंका चोपड़ा जी से? कुछ कंपैरिजन बताइए. आई थिंक प्रियंका चोपड़ा ने जो किया है, आई एम वेरी वेरी, वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है एक्चुअली. शी इज एन इंस्पिरेशन टू मी. शी इज इन हॉलीवुड नाउ एंड आई रियली एडमायर हर. जो उन्होंने किया वो फिल्म के लिए एज अ बॉक्सर, जो उन्होंने बॉडी बनाई, जो उन्होंने पूरी ट्रेनिंग वीनिंग की, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, आई डोंट थिंक एनीवन एल्स कैन डू इट. जो मेरी फिल्म है वो बहुत अलग है उस फिल्म से. हालांकि बॉक्सिंग सेम चीज है बट अलग है, एंड ऑब्वियसली प्रोफेशनल फाइटर हूं मैं, तो थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही, बट प्रियंका चोपड़ा ने जो किया है, हैट्स ऑफ टू हर. Thank you. Thank you so much. Shall we call it a day? Yes. Okay. Thank you so much. Thank you guys. For coming here. Thank you. Thank you.